Good evening, Bachcha Party. Am I audible? Very good evening, beta. Yes, sir. Good evening. Good evening. Yes, sir. Actually, I am facing lots of network issue. Complaint is raised, but still it is not resolved. I am taking class from some neighbor's place. Okay, so have you gone through that lecture? Composition introduction? Yes, sir. Yes, sir. Composition, introduction of composition you have gone through. So I'll just brush up the thing and go to questions directly. Okay. So what we actually discussed in that lecture, that if there are three sets, say x, y, and z, and there is a function g which is defined from set x to y, such that for each x belonging to capital X, there exists a y belonging to capital Y such that g of x is equal to y. मतलब क्या हुआ कि कैपिटल एक्स के हर एक एलिमेंट को, कैपिटल एक्स के हर एक एलिमेंट को जो g फंक्शन है वो कैपिटल y पर मैप कर देगा, कैपिटल y पर मैप कर देगा, मतलब x को y से एसोसिएट कर दिया. तो व्हाट इज y एक्चुअली? y इज नथिंग बट g इमेज ऑफ x. फिर बोला एंड देयर इज अनदर फंक्शन f which is defined from set y to set z such that for all y belonging to capital Y, it maps, there will be a z, it maps to small z belonging to capital Z such that, what is small z? Small z is f image of y. This is a f function, so z is equal to f of y. And since z is f of y and y is g of x, so z is f of, replace y by gx, so it is f of g of x. That means because of the application of these two functions, g from x to y and f from y to z, it appears as if there is a function directly applying from x to z. There is no such function which is operating from x to z. It appears because there are two functions operating in sequence, and that function is known as FOG, fog, FOG of x, fog x. So then if there are such g from x to y and f from y to z, then there exists a function FOG defined from set x to set z such that f image of g image of x is equal to, such that fog of x is equal to f image of g image of x. So ये तो एलिमेंट्री सी डेफिनेशन थी कि तुम्हारा जो fog x फंक्शन है वो कैसा होगा. और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज आपने उस लेक्चर में रिकॉल करी थी? डोमेन इसका क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये इसकी पीरियोडिसिटी क्या होती है, कब ये इंक्रीज करता है, कब ये डिक्रीज करता है, ये सारी बातें आपने उस लेक्चर में एक बार देखी होंगी. जैसे मैं आपसे पूछते जाता हूँ, फटाफट बताओ इसका डोमेन क्या होता है. ये तो पहले हम लोग डोमेन करते समय कर चुके हैं कि डोमेन ऑफ फॉग एक्स इज इक्वल टू व्हाट? Collection of x such that x belongs to domain of G and gx belongs to domain of f.
रेंज ऑफ फॉग एक्स कैसे निकालते हैं वो आप जानते ही हो, डन अर्लियर है, कंपोजिशन मेथड हम लोग कर चुके हैं. And what other properties you know? In the past lecture you have seen that if F and G are injective, then FOG injective. FOG is injective function. Composition of injective function is injective function. Also, if F and G both are surjective, then FOG is surjective. So in totality, you can say that if F and G are bijective, composition of bijective function is always bijective. So conclusion is that composition of bijective function is bijective. Composition of bijective function is bijective. For example, log x log of x cube, log of x cube, definitely it will be defined from 0 to infinity to real set. So you know that x cube is a bijective function and log is also bijective function. So it is a bijective function. This is directly bijective function. Without any test, you can say that it is bijective function. So bijectivity, injectivity, surjectivity, domain and range. If I ask you what will be the domain of, find the domain of e raised to the power log x square plus 4 base 2. What will be the domain of this function? And range as well. So domain is all real. So domain is all real because x square plus 1, for all x belongs to real, x square plus 1 is positive, log is defined, exponential function is defined for all real number. So domain is all real. Domain is all real. And what will be the range of this function? E square से infinity. हाँ, so range calculate करने के लिए what did you say? You say that x square plus 1 varies 1 to infinity. X square plus 4. x square plus 4 लिखा है मैंने, ओके जी, x square plus 4 is 4 to infinity. And therefore take log base 2. Log is an increasing function, so log it is 2 to infinity. And then apply exponential function and it will be e square to infinity. This is the range. So domain, range and bijectivity कैसे जजमेंट लेंगे वो समझ में आना चाहिए. तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये डिस्कस हो गई थी कि अगर f of gx की बात कर रहे हैं हम, f of gx will be periodic. It will be periodic if gx is periodic. If gx is periodic, f of gx will be periodic. And period क्या होगा? What will be the period of f of gx? जो gx का पीरियड होगा with period of gx as its period. उससे छोटा भी हो सकता है, बट वो पीरियड तो होगा ही होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट what is the period of log of
2 plus 3 sin x. So your argument shall be that since y it is composition and 2 plus 3 sin x is periodic, 2 plus 3 sin x is periodic, rather bolo sin x is periodic, so I can call upon this as f of g of hx. Okay, hx is sin x, hx is sin x, gx is 2 plus 3x, and fx is log x. So our argument will go like this: because sin x is periodic with period 2 pi, and you are applying a function gx, so ghx is periodic and its period is 2 pi, then applying f function f of ghx will be periodic with period 2 pi. So किसी भी फंक्शन, किसी पीरियोडिक फंक्शन पर अगर आप कोई फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो उसका पीरियड वो पीरियोडिक ही रहेगा, पीरियड चेंज नहीं होगा। अगर मैं फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूं तो उसमें कुछ चेंज हो सकता है इन सर्टेन केसेस, बट अदरवाइज नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जो फंक्शन कंपोज कर रहे हो, जैसे अगर gx पीरियोडिक है और आप उस पर f कंपोज कर रहे हो और f अगर मोनोटोनिक है तो पीरियड कभी भी नहीं चेंज होगा। तो ये भी एक नोट करके लिख दो, राइट डाउन अ नोट। if fx is monotonic function, if fx is monotonic function, if fx be monotonic, monotonic मतलब either completely increasing or completely decreasing, then period of fgx, फंडामेंटल पीरियड ऑफ fgx, सबसे छोटा पीरियड जिसको बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड ऑफ fgx इज ऑलवेज पीरियड ऑफ gx। अब इसको समझाने के लिए जस्ट मैं थोड़ा सा दो एग्जांपल लेता हूं। जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स पीरियोडिक है तो आप बोलेंगे यस। पीरियड क्या है इसका? पीरियड क्या है? 2 पाई। अगर मैं बोलूं e रेज टू द पावर साइन एक्स पीरियोडिक है, यस। पीरियड क्या है? 2 पाई। जब साइन एक्स की वैल्यू रिपीट होगी तो e की पावर साइन एक्स की वैल्यू भी रिपीट होगी। इनफैक्ट कोई भी फंक्शन कंपोज कर दो साइन एक्स पे, तो जब साइन एक्स अपनी वैल्यू रिपीट करेगा तो उस फंक्शन को रिपीट करके इनपुट मिलेगा, तो वही आउटपुट फिर से आ जाएगा। तो एफ जी एक्स इज पीरियोडिक और इसका पीरियड भी वही रहा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुम्हारा मोनोटोनिक फंक्शन है, बिकॉज e टू द पावर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट, एंड देयरफॉर पीरियड में कोई चेंज नहीं हुआ। फंडामेंटल पीरियड भी यही है, 2 पाई से छोटा इसका पीरियड नहीं हो सकता। लेकिन जरा एक फंक्शन देखो, y इज इक्वल टू cos ऑफ sin x या y इज इक्वल टू mod ऑफ sin x या y इज इक्वल टू x स्क्वायर sin स्क्वायर x। ये तीनों कंपोजिशन है। एक पे साइन के ऊपर cos कंपोज हो रहा है, एक पे साइन पे mod कंपोज हो रहा है, एक पे साइन पे x स्क्वायर कंपोज हो रहा है। क्या कंपोज कर रहे हैं हम लोग? इवन फंक्शन कंपोज कर रहे हैं। साइन एक्स की खासियत क्या होती है? साइन एक्स अपने पूरे पीरियड में हाफ इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू लेता है और हाफ इंटरवल में रिस्पेक्टिव बिल्कुल सिमिलर नेगेटिव वैल्यूज लेता है। अगर मैं इवन फंक्शन कंपोज कर रहा हूं तो इवन फंक्शन तो नेगेटिव पॉजिटिव में डिफरेंशिएट करता ही नहीं ना। इवन फंक्शन को -x इनपुट दो तो भी वही आउटपुट आएगा, +x दो तो भी वही आउटपुट आएगा। इसका मतलब है कि इवन फंक्शन कंपोज होने पर इसका पीरियड कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसका वैल्यू जो आएगा, जैसे cos ऑफ sin x, तो यहां वाली वैल्यू जो आएगी वही वैल्यू यहां इस पर भी आएगी, अगले इंटरवल में आएगी। तो मान लो हमारी वैल्यू इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के मान लो हमारी वैल्यू ऐसी आ रही है, ऐसे ऐसे ग्राफ आ रहा है ऐसा, तो अगले इंटरवल के लिए फिर से ऐसे ही ग्राफ आएगा। इट विल रिपीट, नॉट इट विल बी ए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ग्राफ स्मूथ होएगा। बट अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि होगा क्या।
तो इसका पीरियड जो है यहां से आधे डिस्टेंस के बाद पीरियड रिपीटिशन हाफ से ही शुरू हो जाएगा। तो इसका पीरियड 2 पाई था, इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई, तो इसका पीरियड पाई हो जाएगा, इसका पीरियड भी पाई हो जाएगा मॉड साइन एक्स का, साइन स्क्वायर का पीरियड भी क्या हो जाएगा पाई। क्या कंक्लूजन आया कि जब किसी फंक्शन gx पर कोई फंक्शन कंपोज करोगे तो जो कंपोजिट फंक्शन मिलेगा वो पीरियोडिक तो होगा और उसका पीरियड gx का पीरियड भी होगा, बट एट टाइम्स इन सर्टेन केसेस आप gx का जो पीरियड है उससे छोटा पीरियड से भी पीरियोडिक हो सकता है। वो हमें फंक्शन जो फंक्शन कंपोज हो रहा है उसके नेचर से पता चलेगा, बट ऑलवेज यू नीड टू रिमेंबर दैट इफ over a periodic function you are composing a monotonic function, then the period will remain same as of gx. monotonic function के कंपोज करने पर पीरियड कतई चेंज नहीं होगा। सो दिस इज रिगार्डिंग पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक फंक्शन करते समय फिर से रिवाइज होगा, क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी थोड़ा जानते हो। तो कंटिन्यूटी लास्ट पॉइंट लिख दो, इफ fx and gx are both continuous then f of gx must be continuous function। ये हम लोग पहले भी यूज कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन के थ्रू हम पहले बता चुके हैं। बार बार इंपॉर्टेंट बातों को रिवाइज करते हैं सो दैट वो चीज कभी भूले नहीं। जितनी बार आप उसको दोबारा लिखोगे रिवाइज करोगे उतना चांसेस रहेगा याद है। सो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू अप्लाई। गो टू द क्वेश्चंस क्विक। बोल रहे हैं फाइंड गॉफ एंड फॉग वर्बली क्विक। Find Goff and fog if fx is given x square gx as x minus 7. What is fog x and what is Goff x? Fog x मतलब f of gx and gx is x minus 7, fx is x square, f of gx क्या होगा जी? f of gx लाने के लिए तुमको fx की डेफिनेशन में x की जगह पर gx लिखना पड़ेगा। तो यहां पर रिप्लेस करो क्या, x की जगह क्या रिप्लेस करो, gx डालो, gx। तो आ गया तुम्हारा क्या, बोलो बेटा, fgx क्या आया, gx का होल स्क्वायर आ गया, और gx क्या था 2x माइनस 7 था, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर आ गया। जबकि गॉफ x करोगे तो क्या आ जाएगा, गॉफ x का डिफाइन करने के लिए g को इनपुट देंगे fx, तो जहां पर gx की डेफिनेशन आपको मिल रही है उसमें x की जगह क्या डालेंगे, fx डालेंगे ऐसे। तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा fx माइनस 7, बट fx क्या है जी, fx है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 7। तो ये पहला एक और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ दिख रही है, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है कि fog x इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू गॉफ x। तो कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव। हालांकि कुछ केसेस ऐसे मिल सकते हैं, कुछ पेयर ऑफ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जिसमें कम्यूट करेगा, फॉग और गॉफ इक्वल होंगे। कैन यू जस्ट गेट मी सम पॉसिबिलिटीज व्हेन फॉग एंड गॉफ बिकम इक्वल? fx and gx both equal to x. Although if fx and gx at least one is identity function, at least one is identity, not both, at least one, है ना। if fx is identity, say fx is equal to x, तो fog x क्या हो जाएगा बोलो, gx हो जाएगा, क्योंकि जो इनपुट दोगे वही आउटपुट लेगा। और गॉफ x क्या हो जाएगा, गॉफ x इज इक्वल टू g ऑफ fx होगा, और fx खुद क्या है, x है, तो gx ही आ गया, पहली बात। दूसरा, और f and gx, fx and gx are inverse function of each other, inverse of each other। तो अगर f और g इनवर्स है तो fog x और गॉफ x दोनों क्या हो जाएगा, दोनों x के इक्वल हो जाएंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएंगे।
बट ये दो एक ट्रिवियल एग्जांपल हैं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि these are the only two cases when fog and Goff will be equal. You will come to know that there are many possibilities when fog and Goff are equal, when neither f to any one of them is identity nor they are inverse of each other, still fog and Goff can be equal. That's not a problem. Go to the B part. Fx is given, gx is given. Find Goff x, and Goff x is given, means fx is given and Goff given, gx, determine gx. Quick. सो fx दिया हुआ है क्या, fx दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दैट इज नथिंग बट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और g ऑफ fx क्या दिया हुआ है बोलो, वो दिया हुआ मॉड ऑफ x प्लस 1. आपको पता है मॉड x प्लस 1 को रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर भी बोलते हैं, और x प्लस 1 का स्क्वायर को क्या बोलते हैं, x प्लस 1 स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, fx बोलेंगे ना. तो ये रूट fx, gfx रूट fx हो गया. इसका मतलब है कि gx क्या है, gx इज इक्वल टू रूट x. गो टू नेक्स्ट. हाँ जी, क्विक. बोला कि fx सिग्नम x है, gx 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x है, तो आप fgx निकालो और gfx निकालो. fx सिग्नम फंक्शन है, gx 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, आपको fgx और gfx बताना है क्या होगा, fgx क्या होगा और gfx क्या होगा. क्विक. ग्रेट. fgx क्या होगा, 1. f of gx is nothing but सिग्नम ऑफ gx, है ना, सिग्नम Yes, ऑफ gx, और gx हमारा क्या है, Positive. gx पॉजिटिव है. Positive. क्यों gx पॉजिटिव है, बिकॉज 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर सिग्नम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर उसको पॉजिटिव इनपुट देते हैं तो 1 वैल्यू देता है हमेशा. तो f gx इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड इट इज 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, and this means domain is all set real and it is a constant function 1. Now gfx, let's look at g of fx. fx पर g का खोज कर. 1 ही है सर. हाँ, तो g fx का मतलब है 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx, एंड fx इज अ सिग्नम x, तो आ गया 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सिग्नम x. सिग्नम x की वैल्यू इंटीजर होती है, या तो +1 या तो -1 या तो 0, बिकॉज सिग्नम x कैन टेक -1, 0 और 1 वैल्यू which are all integer, and integer has no fractional part, therefore it is 1 plus 0, answer is 1. तो gfx की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई, 1. अब जरा ध्यान से देखो कि हमने ये तो देख दिया कि f of gx और g of fx दोनों इक्वल आ गए, बट देखो तो ये दोनों फंक्शन में से कोई आइडेंटिटी नहीं, ना तो सिग्नम x आइडेंटिटी फंक्शन है, ना तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट आइडेंटिटी फंक्शन है, ना ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं. इनफैक्ट ये तो इन्वर्टिबल ही नहीं, सिग्नम x तो मेनी वन फंक्शन है. तो नाइदर f and g both are neither, none of them are identity nor they are inverse of each other, still their forward and reverse composition are equal. So this is an example of the case which I was talking about there. Next question. बोल रहे हैं find the domain of the function
f of mod 3x minus 2 if it is given that domain of fx is minus 1 to 3. Quick. fx का डोमेन दिया हुआ, मतलब जो आउटर कंपोनेंट है, क्योंकि ये f ऑफ mod 3x minus 2 एक कंपोजिट फंक्शन है। पहले x के ऊपर में लीनियर फंक्शन कंपोज हुआ, फिर mod x कंपोज हुआ, फिर उसके ऊपर f कंपोज हुआ। तो जो आउटर मोस्ट फंक्शन है उसका डोमेन पता है, तो हमें इस कंपोजिट फंक्शन का डोमेन निकालना है। कंपोजिट फंक्शन का डोमेन का कंडीशन क्या होगा भाई? f of mod 3x minus 2 will be defined as when if and only if mod of 3x minus 2 is defined and it lies between domain of f. What is domain of f? Mod 3x minus 2 is always defined, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल होता है, पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल होता है, तो ये कंपोजिट फंक्शन का डोमेन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। बट इसकी जो वैल्यू है वो f की डोमेन में होनी चाहिए, मतलब मॉड ऑफ 3x minus 2 की वैल्यू f का डोमेन क्या है? -1 से 3, -1 से लार्जर आर इक्वल और 3 से स्मॉलर आर इक्वल होना चाहिए। अब भाई मॉड्यूलस ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज rather modulus of any real or non-real number as well, it is always positive or zero, it cannot be negative. So यहां से आ गया भाई कि ये चीज तो हमेशा वैलिड होगी, क्योंकि mod is positive number और zero non-negative number is always greater than -1. तो first inequality holds good for every real x. So x belongs to real number. Now consider the second inequality, this one. Solve it. And 3x minus 2 magnitude less than equal to 3 का क्या solution आएगा? Distance of 3x from 2 is 3 unit or less. तो 2 से 3 यूनिट राइट जाएंगे 5 आएगा, 3 यूनिट लेफ्ट जाएंगे -1 आएगा। तो जो तुम्हारा 3x है ना, 3x, इस 3x का सेपरेशन 2 से लेस आर इक्वल टू 3 यूनिट है, तो 3x जो तुम्हारा होगा वो -1 से लेके 5 के बीच लाई करेगा, इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स। हेलो, इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, 3x lies Yes, between sir. -1 to 5 and therefore x lies between x belongs to -1/3 to +5/3। तो ये डोमेन तुम्हारा हुआ क्या? f ऑफ mod 3x minus 2 का, -1/3 क्लोज्ड से 5/3 क्लोज्ड। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया कि आउटर कंपोनेंट अगर उसका डोमेन दिया हुआ है तो आप पूरे कंपोजिशन का डोमेन निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन टेस्ट करते हैं, आपको जल्दी से आंसर करेंगे, 2 पार्ट होंगे, फटाफट आप जो है 2 मिनट या 1 मिनट में अंदर में खत्म करो उस प्रॉब्लम को, स्पीड से, एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए। 30 सेकेंड वर्बली आंसर कर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फंक्शन f(x) is defined in 0 to 1, find the domain of f tan x. And what will be the answer if function f(x) has domain -1 to √3? Prompt reply चाहिए। तो for the first case here tan x must lie between 0 to 1। आपको चमक गया होगा, tan x 0 से 1 की बात हो रही भाई, दिख रहा है tan का ग्राफ तो चमक रहा होगा आपको। yes. n pi plus n pi by N pi plus 5, n pi से n pi plus 5. हाँ जी, एक पीरियड अगर tan का प्रिंसिपल डोमेन ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि tan का ग्राफ ऐसा होता है, और इसमें तुम्हारा ये π/2 होता है। 0 से 1 की बात कर रहे हैं, मतलब है क्या?
0 पर वैल्यू 0 और π/4 पर जाके वैल्यू हो जाती है 1। तो हमारा जो इंटरवल है वो 0 यहां से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके एंड कर जाएगा, क्लोज्ड। अब इसका मतलब हमारा यहां से मिला कि x बिलोंग्स टू 0 to π/4 इन फर्स्ट quadrant. If I am analyzing x belongs to 0 to π/2 या -π/2 to π/2, एक पीरियड को एनालाइज कर रहे हैं तो ये आ रहा है आंसर। तो अगर बोल रहे हैं कि पूरा सॉल्यूशन सेट लिखना होगा तो आप पीरियोडिकली इसको जनरलाइज कर दें। तो अगर पीरियोडिकली जनरलाइज करना है तो क्या करेंगे, tan का पीरियड होता है n π, आप खुद ही देख लो, -π/2 से π/2 में इसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। पाई पीरियड है तो n π, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, n π ऐड कर दो, n π + 0 to n π + π/4 ये हो गया तुम्हारा। बट हमने दिया था यस, ये दिस इज द आंसर वेयर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक पार्ट तो आपने खत्म किया, अब दूसरे पार्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, जल्दी बताइए। ये ए पार्ट था, बी पार्ट में n π - π/4 to n π + π/3। हाँ, बी पार्ट में तुम्हें बोला जा रहा है -1 से √3। -1 कब होता है tan का वैल्यू, -π/4 -π/4, और 1 और तुम्हारा √3 कब होता है, π/3 √3 होता है π/3 पर। इसका मतलब है कि हमें ये इंटरवल देखने हैं, ये वाला इंटरवल लेना। सॉल्यूशन बोलो, x बिलोंग्स टू open n π - π/4 to n π + π/4 close n π - π/4 से लेके n π + π/3 π/3 बोथ साइड, राइट हैंड साइड right hand क्लोज side एंड लेफ्ट हैंड साइड ओपन। open x यूनियन x बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये तुम्हारा फाइनली सॉल्यूशन सेट आ गया, मतलब डोमेन आ गया कि इसका डोमेन, एक पीरियड का डोमेन लिया फिर n π ऐड करके जनरलाइज कर दिया तो कंप्लीट डोमेन आ गया। ठीक है जी, मतलब ये वाला रीजन था जो पूरा सेटिस्फाई करा था, ये वाला पूरा। यहां तक 60 डिग्री तक। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सोच समझ करके, जल्दबाजी में आंसर देना है लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। हाँ जी, क्विक। बोल रहे हैं फाइंड द डोमेन ऑफ f of mod of gint x if the domain of fx is given as, there are three cases, -3, -3 to 2, then what will be the answer? 0 close to 1 open, what will be the answer? 0 close to 0 open to 1 open, then what will be the answer? You have to just put the answer in all three cases, quick. सर एक -2 to 3 -2 पे close और 3 पे -2 पे क्लोज और 3 पे ओपन। yes sir Well, go ahead. In a part, you will say that mod of gint x की वैल्यू -3 से 2 होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ये फंक्शन डिफाइंड हो तो जो मॉड जिंट एक्स की वैल्यू है वो f के डोमेन में होनी चाहिए, और f का डोमेन दिया हुआ है -3 से 2 क्लोज। और फिर मॉड ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ जिंट एक्स की वैल्यू 0 से 2 होनी चाहिए। अब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमेशा ही ट्रू है,
मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। ये दूसरे वाली इनइक्वालिटी से देखो तो यहाँ से आ जाएगा कि मॉड ऑफ जिंट एक्स की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए, बस लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से किसी नंबर का मॉड लेस देन इक्वल टू 2 है तो वो नंबर दैट इज जिंट एक्स की वैल्यू -2 क्लोज्ड से 2 क्लोज्ड होनी चाहिए। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये सारी चीजें आप कर चुके हैं। यस सर। अब यहां से बेटा स्ट्रेट वे आप आंसर बता दो। क्या जिंट की वैल्यू -2 से 2 है तो इसमें अगर जिंट की वैल्यू -2 है तो -2 से -1, जिंट की वैल्यू -1 है अगर, क्योंकि इंटीजर वैल्यू सारी लेगा, तो -1 से -1 क्लोज से 0, जिंट 0 है तो 0 क्लोज से 1, और जिंट 1 है तो 1 क्लोज से 2 ओपन, और 2 है तो 2 क्लोज से 3 ओपन। तो फाइनल आंसर आ गया x बिलोंग्स टू। हालांकि ये सब बहुत पहले से आप कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ऐसे पूरा डिस्क्रिप्टिव मैं इसलिए करके बता रहा हूँ कि अगर इवेंचुअली आप में से कोई जो है प्रैक्टिस नहीं अच्छे से की हो तो कम से कम बात तो समझ में आनी चाहिए ना। ठीक है जी। सो दिस वाज योर आंसर फॉर ए पार्ट। सो प्लीज गेट मी द आंसर फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट एज क्विक एज पॉसिबल। हाँ, 0 क्लोज टू 1, बी का आंसर क्या है? बी का 0 क्लोज टू 1, बी का आंसर आ गया कि मॉड ऑफ जिंट एक्स की वैल्यू 0 क्लोज से 1 ओपन चाहिए थी। इससे आ गया कि मॉड ऑफ जिंट एक्स की वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। तो मॉड एक्स की मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1, तो ए बिलोंग्स टू -1 to 1, तो ये -1 से 1 के बीच में होगा। इसमें जिंट की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई तुम्हारी क्या आई? 0 क्लोज्ड से 1 ओपन आ गई। एग्रीड जी। व्हाट डू यू से रिगार्डिंग द सी पार्ट? null set. null, null set, सी पार्ट नल सेट, क्यों, क्या फर्क हुआ इसमें? कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है। मॉड ऑफ जिंट एक्स की वैल्यू 0 ओपन से 1 ओपन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें जिंट एक्स इंटीजर होगा, मॉड उसका एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसमें कोई इंटीजर है नहीं, तो इसका मतलब है कि जिंट एक्स बिलोंग्स टू नल सेट, therefore x belongs to null set। तो ये सिर्फ 0 क्लोज था इसलिए 0 वैल्यू ले लिया था इसने, 0 ओपन हो गया मतलब 0 वैल्यू नहीं, एक ही वैल्यू पॉसिबल थी 0, वो भी नहीं ले सकता है फंक्शन, तो therefore योर आंसर इज नल सेट। तो ये तो हो गया डोमेन पर कैसे आप काम करेंगे क्वेश्चंस पे। जल्दी आंसर करो। बोल रहे हैं fx इज अ फंक्शन डिफाइंड एज log ऑफ 2 log x base 10 plus 2 over minus x to the base 100 times x, and gx is given as fractional part of x. If the function fog x exists, then find the domain of fog x. तो fog x का डोमेन बताना आपको क्या होगा, क्विक।
सर n से n plus 1/10 और n इंटीजर कोई। n ओपन से n plus 1/10 ओपन तक और n कोई इंटीजर है। पक्का? लगता तो ये है। लगता नहीं। अब इस स्टेज पे आकर तुम लोग ऐसे ऐसे मत बोलो तुम ना कि लगता है, मतलब योर आंसर हैज टू बी, इट मस्ट बी जस्ट शाइनिंग विथ कॉन्फिडेंस। लगता उगता की बात नहीं, यस इट इज द आंसर, ऐसा होना चाहिए। लगता तभी होता है ना जब आपको कहीं अपने प्रोसेस में कहीं कुछ मतलब कि कंफ्यूजन लगता है कि शायद मैंने पूरा सही किया कि नहीं किया। एनीवे बेसिकली देखते हैं, चलो मैं चेक करता हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है बोलो भाई? सबसे पहली कंडीशन है कि ये पूरा होना चाहिए पॉजिटिव ना, तो मैं लिखते रहा हूँ कंडीशन, log 2 log x base 10 plus 2 divided by negative x has to be positive, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, एंड बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो 100x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड 100x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, डोमेन रेस्ट्रिक्शन को ध्यान से समझो। तो अब आ जाओ भाई, ये वाला कंडीशन बोल रहा है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन बोल रहा है कि x की वैल्यू 1/100 नहीं होनी चाहिए, और ये बोल रहा है ये भाई साहब बोल रहे हैं क्या, ये बोल रहे हैं कि भाई जब x पॉजिटिव है तो -x नेगेटिव भी तो हो गया, और -x नेगेटिव हो गया तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? अरे -x की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव। तो 2 log x बेस 10 प्लस 2 की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, और x पॉजिटिव है तो यहां से आ गया क्या, क्या आया जरा बताओ? log x बेस 10 की वैल्यू लेस देन -1 हो गई, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो log x बेस 10 की वैल्यू -1 को बेटा log 1/10 बोल सकते हैं, बेस 10। log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, log हटाएंगे तो x लेस देन 1/10 आ रहा है, बट यहाँ ये भी तो ट्रूथ है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी भी होनी चाहिए, बट साथ के साथ ये भी कंडीशन है कि x की वैल्यू 1/100 नहीं होनी चाहिए। फाइनल आ गया कि x बिलोंग्स टू, क्या आया बताओ फटाफट बताओ? x बिलोंग्स टू क्या? 0 से लेके 1/10 ओपन एक्सेप्ट 1/100। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? ये f का डोमेन है, ये डोमेन ऑफ फंक्शन f है, डोमेन ऑफ f। बट हमें क्या निकालना है? हमें f को कंपोज करना है gx पे, f gx की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली fo gx विल बी डिफाइंड कब? जब gx की वैल्यू डोमेन f में लाई करे, है ना? यही होता है कि नहीं होता है? तो gx मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 0 से 10 1/10 होनी चाहिए, बट फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 1/100 नहीं होनी चाहिए। साकेत तुम्हें समझ में आया गलती कहाँ हुई थी? x माइनस जिंट x की वैल्यू, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? x माइनस जिंट x की वैल्यू 0 से लेके 1/10 होगी, बट x माइनस जिंट x की वैल्यू 1/100 नहीं होगी। अच्छा जी, जिंट x, फॉर एनी x जिंट x विल बी एन इंटीजर, लेट जिंट x की वैल्यू n है, तो x की वैल्यू क्या होगी? n से लेके n प्लस 10 n प्लस 1/10, but x is not equal to n plus 1/100. So your answer is union of n to n by 10, नहीं n plus 1/10, n to n plus 1/100 open union n plus 1/100 to n plus 1/10,
and union n belongs to integer. So this is final showcase of the answer. This is the final presentation of answer. Domain of FOG of x. क्लियर है? बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, अगर हमारा फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंपोज्ड है, f का एक सिंगल डेफिनेशन है, g का एक सिंगल डेफिनेशन है, तो आप कुछ इस तरह से FOGX निकाल सकते हैं, उसकी डोमेन बता सकते हैं, उसकी रेंज बता सकते हैं, और कंपोजिशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज को वर्कआउट कर सकते हैं। अब जैसे f ऑफ fx दिया हुआ है ना, फंक्शन fx है क्या, 1 प्लस एक्स जब x की वैल्यू 0 से 2 है, और 3 माइनस एक्स जब x की वैल्यू 2 से 3 है। आपको f ऑफ fx निकालना है, ठीक है? तो आप इस क्वेश्चन को अपन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेने के बाद। तो अभी आप लोग भी थोड़ा डिनर कर लो, ठीक है? लेट मी ऑल्सो टेक डिनर, and then after it is actually 7:40, it is 7:40, so at 8 o'clock sharp we will start. By the time if you are free after your dinner, then you can do one thing, you can solve this question and write its answer, means what will be f of fx, how does its graph looks like। ये दो चीजें आप पूरा वर्कआउट करके रखना, लेकिन पहले जस्ट टेक डिनर एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ठीक है? उस पर थोड़ा वर्क करेंगे और फिर हम लोग इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे। तो जस्ट वी आर गोइंग टू पॉज द लेक्चर फॉर say 20 minutes, 15 to 20 minutes, finish your dinner। Okay, so you have done it? yes, Yes, sir. तो क्या किया है इसके लिए? सबसे पहले आपको क्या करना था? सबसे पहले आपको, अगर आपको चाहिए f ऑफ fx, मतलब है कि जो f फंक्शन है उसको x के बजाय fx इनपुट देंगे, तो ये जो डेफिनेशन है इसी में रिप्लेस x बाई fx है ना, रिप्लेस x बाई fx कंप्लीटली। तो जैसे ही आप x की जगह पर fx रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, आप खुद सोचो। होगा ये कि ये दो डेफिनेशन के थ्रू ऐसा आएगा, ऐसा fx इज इक्वल टू 1 प्लस fx, लेकिन ये कब होगा, जब fx की वैल्यू 0 से 2 लाई करेगी, और 3 माइनस fx होगा कब, जब fx की वैल्यू 2 से 3 लाई करेगी। तो fx इन टर्म्स ऑफ f ऑफ fx इन टर्म्स ऑफ fx चाहिए हमें, x चाहिए हमें, बट हमने अभी f ऑफ fx को fx के टर्म्स में लिखा, बट fx क्या है, fx फर्दर x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया इस तरह से। तो अब जरा fx की डेफिनेशन यूज करो, तो ये पहले केस में दो केसेस बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं? एक जब fx 1 प्लस एक्स जैसा बिहेव करेगा, और एक जब वो 3 माइनस एक्स जैसा बिहेव करेगा। तो जहां जहां fx है वहां पर ये दोनों डेफिनेशन लगा दो, तो 1 प्लस fx इज 1 प्लस एक्स। ऐसा कब होगा जी? तो ऐसा होगा जब fx इज 0 to 2, fx मतलब fx को क्या लिखा हमने, 1 प्लस एक्स लिखा, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0 से 2 होनी चाहिए। लेकिन fx 1 प्लस एक्स कब होता है भाई? fx की वैल्यू 1 प्लस एक्स कब होती है?
जब x की वैल्यू 0 से 2 हो तो ये भी लिखेंगे एंड x की वैल्यू भी 0 से 2 होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए ना। ये कंडीशन क्या है, ये है x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, और ये क्या है fx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। भाई f ऑफ fx को डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू f के डोमेन में होनी चाहिए और fx की वैल्यू भी f के डोमेन में होनी चाहिए, ये दो कंडीशन है। लेकिन अगर fx की वैल्यू 3 माइनस एक्स हो गई तो यहाँ fx की जगह 3 माइनस एक्स आएगा, 3 माइनस एक्स आएगा तो आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस एक्स। लेकिन ये कब होता है जी, जब fx मतलब 3 माइनस एक्स की वैल्यू 0 से 2 हो। लेकिन fx की वैल्यू 3 माइनस एक्स कब होता है, जब x 2 से 3 हो। ठीक है जी, समझ में आ रही बात कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes. एग्जैक्टली इसी तरह से आप दूसरे केस को भी पूरा का पूरा ब्रेक करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी यहां भी आएगी। क्या, जब fx की वैल्यू 1 प्लस एक्स है तो 3 माइनस 1 प्लस एक्स, और जब x की वैल्यू 3 माइनस एक्स तो आ जाएगा 3 माइनस 3 माइनस एक्स। इसकी करस्पॉन्डिंग कंडीशन क्या होगी, भाई fx 2 से 3 है मतलब 1 प्लस एक्स जो है 2 से 3 है, 1 प्लस एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। एंड दूसरा केस जब 3 माइनस एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है बट 3 से छोटी है। ये 2 क्लोज नहीं है बेटा, 2 ओपन है, इसका ध्यान रखना। और साथ के साथ एक कंडीशन होगी कि जब fx 1 प्लस एक्स कब होता है, जब 0 से 2 के बीच में x लाई करता है, और ये होता है जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में। सो f ऑफ fx पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में f ऑफ fx को हमने x के टर्म्स में लिखा, fx के टर्म्स में लिखा। ये पूरा डिस्कशन जो था वो f ऑफ fx एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ fx एंड देन fx इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। तो फाइनल ये 4 डेफिनेशन आ रही है, लेकिन ये चारों डेफिनेशन होल्ड करेगी या इसमें से 3 होल्ड करेगी या 2 होल्ड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि डोमेन रिस्ट्रिक्शन फॉलो हो रही कि नहीं। मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इसी तरह से इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इसी तरह से ये वाला और ये वाले का इंटरसेक्शन लेंगे, और ये वाले का इसका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेके आंसर क्या है फटाफट देखो। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू -1 से 1। हाँ या ना, फटाफट बोलते जाना। इसका Yes. मतलब x 0 से 2, तो 0 से 2 और -1 से 1 का इंटरवल क्या आया, 0. 0 से 1। तो अगर 0 से x की वैल्यू 1 के बीच में वेरी कर रही है तो हमारा डेफिनेशन आएगा 2 प्लस एक्स। f ऑफ fx हमारा होगा 2 प्लस एक्स। अब यहां आ जाओ, 3 माइनस एक्स 0 से 2 है तो x माइनस 3 कहाँ होगा, x माइनस 3 की वैल्यू -2 से 0 हो जाएगी ना, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। फिर 3 ऐड कर दो बेटा, तो 3 प्लस 3 माइनस 2 1 से 3, तो यहां से आ गया कि x की वैल्यू 1 से 3 है। क्लोज्ड 1 से ना, ओपन 1 से क्लोज्ड 3, नहीं दोनों साइड क्लोज है, आई एम सॉरी। तो क्लोज 1 से 3 और ये है 2 से 3, 2 से 3 और 1 से 3, तो इंटरसेक्शन क्या आया, इंटरसेक्शन क्या आया इन दोनों का, 2 से 3 क्लोज्ड। इसमें आया 1 प्लस 3 4 माइनस एक्स। अब आ जाते हैं इसको, देखो इसको 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, और ये है 0 से 2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका और इसका, 1 से 2 है ना, 1 ओपन से 2 क्लोज्ड, तो 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। बोलो हाँ या ना। Yes. ये आ गया तुम्हारा, क्या डेफिनेशन आई बोलो, 3 माइनस 1 2 माइनस एक्स।
एंड लास्ट। अब यहां पर एक बार बताओ, ये 2 पर दोनों जगह इक्वालिटी आएगी क्या? इसके पहले वाला केस को जरा ध्यान से देखो, ये 2 से 3 था और ये 1 से 3 था। 1 क्लोज्ड था, 3 क्लोज था, लेकिन 2 ओपन था 2 से 3। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके 2 ओपन टू 3 आएगा ना। ये सेकंड केस में 2 ओपन टू 3 आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes. Yes. यहां क्लोज। वैसे भी देखो, अगर दोनों जगह क्लोज आ जाएगा तब तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा ना। Yes. लास्ट। तो कहीं पर इस तरह से डबल इक्वालिटी आए तो एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा तुमको। अब यहाँ देखो, मतलब कहीं गलती करके अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, 2 2 3, ये क्या आ गया, x माइनस 3 की वैल्यू जो है वो -3 से -2 है। 3 ऐड कर दो, 0, x लेस देन 1, 0 से 1, और ये 2 से 3, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा? इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा नल सेट। इसका मतलब है कि जो लास्ट डेफिनेशन है f ऑफ fx = x, ये कभी होल्ड नहीं करेगी। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? हमारा आंसर आया कि f ऑफ fx हमारा जो फंक्शन है ये 0 से 1 इनपुट के लिए 2 + x जैसा बिहेव करेगा, 1 से 2 इनपुट के लिए 2 - x जैसा बिहेव करेगा, 2 से 3 इनपुट के लिए 4 - x जैसा बिहेव करेगा। दिस क्रॉस चेक, यही आंसर आ रहा था आप लोगों का? Yes, sir. अब इसका ग्राफ भी बना सकते हो आप। इसका ग्राफ कैसा नजर आएगा वो बना के देख लो फटाक जल्दी से। अब लगभग आपको प्रोसीजर भी समझ में आ ही गया होगा कि 0 से 1 में 2 + x है, मतलब 0 पर वैल्यू 2 है और x 1 पर वैल्यू 3 है, तो 2 से 3, तो एक स्ट्रेट लाइन है 2 से 3 वेरी कर रही है। तो 0 पर वैल्यू 2 है और 1 पर वैल्यू 3 है, ऐसे। फिर यहां पर 1 पर वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है, ये देखो, ये 1 पर लिमिट 1 है और 2 पर वैल्यू 0 है, तो 1 पर 1 है, मतलब यहां से सीधे ऐसे जंप होगा यहां और ऐसे। हेलो, आर यू Yes. ओके? 0 पर वैल्यू 2 थी, 2 पर वैल्यू 3 थी, यहां पर वैल्यू लिमिट 1 आ गई, और ये हो गया 0। दिस वाज 1 एंड दिस वाज 2, ये हो गया 0। 2 पर वैल्यू 0 आ गई, 1 से 2 हो गया। अब 2 से 3, 2 पर लिमिट यहां से देखो, यहां पर 2 पर लिमिट क्या है, 2, तो ये यहां फिर से यहां चला गया, यहां पर वो, लेकिन एक सर्कल बनेगा यहां पर ऐसा, और इसके बाद फिर ये 4 - x ग्राफ होगा, 4 - x, मतलब 3 पर वैल्यू 1 आएगी यहां ऐसा, and it will look like this. So this is the graph looks like just parallel to this line segment, ऐसा है। ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा, और वो स्केल पे करेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ऐसे पर थोड़ा नॉन स्केल पर है तो इसलिए ग्राफ आपको उतना सुटेबल नहीं दिख रहा है। सो इस तरह का कुछ आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये लाइन सेम है, यहाँ यहीं पर रख जाएगा मान लो, तो ऐसा कुछ। सो कैसे कंपोज करते हैं ये मैंने करके दिखाया फिजिकली, लेकिन इसका प्रॉपर एक एल्गोरिथम भी चाहो तो लिख सकते हो। एक क्वेश्चन करते हैं उसमें, फटाफट जल्दी से लिखेंगे। कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। अगर कोई फंक्शन f है जो यूनिफॉर्मली डिफाइंड नहीं है, कुछ इंटरवल के लिए उसकी डेफिनेशन अलग है, कुछ दूसरे इंटरवल में उसका फार्मूला डिफरेंट है, और ऐसा ही g है। तो सपोज वी हैव टू फंक्शंस, fx is defined as, to find the composition of two function when they are defined in the intervals piecewise defined या non uniformly defined है। For example,
given two function f is defined as 2x minus 1 when x varies 0 to 2 and x square plus 1 when x varies 2 to 4, and g is defined as x plus 1 when x varies minus 1 to 1 and it is 2x when x varies 1 to 3. Now you have to find out f of gx or you may have to find out g of fx. So आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि what is f gx, what is g fx, how is their graph, या ये भी पूछ सकते हैं कि f gx कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, g fx कौन कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, या कुछ ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि f gx जो है वो अगर x इक्वल टू a और b पर डिसकंटिन्यूअस है और gx जो है वो c और d पर डिसकंटिन्यूअस है, fx अगर जो है वो e और f पर नॉन डिफरेंशिएबल है, gx तो वो सारे नंबर्स का सम पूछ सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ क्या होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो कुल मिला जुला करके आपको एफ जी एक्स की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है या एफ जी एक्स का ग्राफ बनाना है या उसका डेफिनेशन चाहिए। तो तरीका वही है, पहला स्टेप अब लिखते जाइए, फटाफट सारे स्टेप्स लिखिए, क्वेश्चन करते हुए जाइए। फाइंड एफ जी एक्स एंड स्केच द ग्राफ। मान लो ये क्वेश्चन है, तो पहला स्टेप है replace gx in the place of x input x, replace gx in the place of input x in the definition of fx, f of gx। ये fx की डेफिनेशन है, यहां पर जहां जहां x दिख रहा है वहां gx डाल दो, तो आया तुम्हारा f gx is equal to 2gx minus 1 when gx varies 0 to 2 and gx square plus 1 when gx varies 2 to 4। यही चीज अभी पीछे कर रहे थे। अब ये हमें f ऑफ gx के फंक्शन के फॉर्म में मिल गया, gx के टर्म में, मतलब g एज इफ के gx इनपुट है तो आउटपुट फंक्शन क्या है, बट gx खुद यूनिफॉर्मली डिफाइंड नहीं है, gx खुद अलग इंटरवल में अलग फार्मूला रखता है। तो अब दूसरा स्टेप है, नाउ अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ gx, अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ gx इन द अबव डेफिनेशन ऑफ एफ जी एक्स। तो लगाओ भाई एफ जी एक्स में जी एक्स की डेफिनेशन लगाओ, तो एफ जी एक्स में जहां जहां जी एक्स है तो दो केस हो जाएंगे ना, यहीं पर देखो ऐसे एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, बोलो जरा तो, 2 जी एक्स की दो वैल्यू 2x प्लस 1 माइनस 1, पहले हम ये वाली डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, इफ gx मतलब x प्लस 1 की वैल्यू 0 से 2 है एंड gx x प्लस 1 कब हुआ, जब x की वैल्यू माइनस 1 से 1 है, जब x की वैल्यू माइनस 1 से 1 है। ये आ गया इस डेफिनेशन का पहला पार्ट। इस डेफिनेशन में जब gx x प्लस 1 हो गया, जब gx 2x हो जाएगा तो आ जाएगा ये 2 टाइम्स 2x माइनस 1। ये कब होगा, जब gx मतलब 2x की वैल्यू 0 से 2 है एंड x की वैल्यू, अब 2x कब होता है gx 1 से 3 है। तो पहली डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब gx f gx की जो दूसरी वाली डेफिनेशन है उसमें gx के दोनों केसेस डाल दो, तो आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर gx का स्क्वायर प्लस 1, और दूसरे केस में 2 टाइम्स gx 2x का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स नहीं, gx का होल स्क्वायर प्लस 1 था ना, gx का होल स्क्वायर, gx हमारा x प्लस 1 था, अब gx 2x है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1। ये कंडीशन कब आएगी भाई, जब gx की वैल्यू 2 से 4 है, मतलब x प्लस 1 की वैल्यू 2 से 4 है एंड x की वैल्यू माइनस 1 से 1 है। और ये कब आएगा, जब 2x की वैल्यू 2 से 4 है
एंड x की वैल्यू 1 से 3 है। अब तुम्हारे एफ जी एक्स की दो डेफिनेशन gx के फॉर्म में, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग gx की दो डेफिनेशन x के फॉर्म में, तो टोटल 4 डेफिनेशन आ गई। लेकिन ये चारों में से कौन सी वैलिड होगी, कौन सी इनवैलिड होगी, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ द टू कंडीशन से। एफ जी एक्स हमारा क्या आएगा? अब यहां देखो, x -1 से 1 है और ये बोल रहा है x -1 से 1 है, 1 सब्ट्रैक्ट करके देख लो तो दोनों सेम है, तो आ गया x -1 से 1, इंटरसेक्शन आया -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। इस इंटरवल में gx हमारा है 2x + 2 -1 2x + 1। फर्स्ट पार्ट इज डन। अब यहां देखो, ये 1 से 3 है और ये 0 से 1 है। 0 से 1 ओपन और 1 से 3 इंटरसेक्शन नल सेट, x बिलोंग्स टू नल सेट when 4x - 1, मतलब एफ जी एक्स की वैल्यू 4x - 1 कभी नहीं होगी। यहां देखो, x की वैल्यू 1 से 3 है और ये -1 से 1 है, देख रहे हो ना, 1 क्लोज्ड से 3 और ये -1 से 1, इंटरसेक्शन फिर से क्या है? नल सेट है। यहां 1 पे खत्म हो रहा है और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहां इक्वालिटी है, यहां नहीं है, इंटरसेक्शन नल सेट। तो x बिलोंग्स टू नल सेट आया, किसके लिए? x + 1 का होल स्क्वायर + 1 के लिए। बोलो हाँ या ना? अरे बोलते जाओ भाई। और यहां पर आया x की वैल्यू 1 से 2 और ये 1 से 3, तो 1 से 2 आ जाएगा। 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। क्या होगा? 4x² + 1। तो फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर आया कि योर f ऑफ gx fog x फंक्शन इज a linear function 2x + 1 whenever the input lies -1 to 1 open, and if input lies 1 closed to 2 closed, then it is a quadratic polynomial 4x² + 1. This is the definition of fog x. तो जब जब आपको ऐसा कंपोज्ड फंक्शन मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन को कंपोज करना होगा, तो आप हमेशा इस प्रोसीजर को पेशेंस से फॉलो करना होगा आपको। इसमें देखो, पेशेंस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप पेशेंस लूज करोगे तो गलतियां हो जाएंगी, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, 100% आएगा आंसर। ठीक है, और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। अब इसका ग्राफ ऑफ भी बन जाएगा आराम से, है ना। -1 से 1 के बीच में अगर मुझे ग्राफ करना हो स्ट्रेट लाइन का, तो -1 पर वैल्यू क्या है? -1 -1, और 1 पर वैल्यू क्या है? 3, तो 1 पर वैल्यू है 3, ऐसे ओपन, वैल्यू नहीं लिमिट है। तो ऐसे आप यहां से लेकर के यहां से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके बाद में फिर दूसरे स्टेप पे जाएंगे। 1 पर वैल्यू ये 5 है और 2 पर वैल्यू ये 9 हो जाएगा, नहीं 17 हो जाएगा। तो ये 1 पर ये 3 है, 3 से ऊपर कहीं से स्टार्ट होगा ऐसे ओपन इंटरवल से, और एक पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा उसके बाद। ऐसा, तो यहां देखो डिसकंटिन्यूटी आ गई, फिर रेंज भी आ जाएगी। रेंज क्या आएगी इसकी बोलो? ये 5 कॉमा कितना था ना, 5 नहीं, 1,5 था, 1,5, और ये था 1,3, लेकिन 3 ओपन था यहाँ पर, ये ओपन था यहाँ पर, और ये -1 था। तो रेंज आ रही -1 से लेके 3 ओपन यूनियन 5 क्लोज से लेके 17 क्लोज तक। दिस इज रेंज ऑफ फंक्शन। तो ये फंक्शन का डोमेन क्या आया? तो इस फंक्शन का डोमेन आया -1 से 2, डोमेन आ गया -1 से 2। और रेंज क्या आई? रेंज आई -1 से 3 यूनियन 5 से 17। ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके जी, क्लियर है सबको? समझ में आ रही बात? यस। तो अब चलो क्वेश्चंस करो फटाफट जल्दी से, कंपोजिशन की कहानी खत्म करते हैं।
तो यूनिफॉर्मली फंक्शन डिफाइंड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सेहत पे, आप दोनों ही केस में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये है, एक दो क्वेश्चन है, ये आपने कर लेना अपने आप, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मल्टीपल केसेस बनेंगे, तो आप अपने आप ही इसको कर जाएंगे। पहला क्वेश्चन ए पार्ट, दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट, अपने आप कर ले जाएंगे। आपके शीट में भी होगा, गेम में भी ये होगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने आप कर जाएंगे। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये तो स्ट्रेट अवे है, आप प्रोसीजर तो पूरा समझ ही गए होंगे 2 क्वेश्चन करते करते। ओके जी, अब इसमें से एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप करो अभी। कौन सा करोगे बोलो? बी पार्ट करें? थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, बी पार्ट जरा करके बताओ, सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट, क्विक। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, एफ एक्स दिया हुआ -1 प्लस मॉड एक्स -2 व्हेन एक्स वेरीज 0 to 4 क्लोज्ड, एंड जी एक्स इज अ फंक्शन 2 माइनस मॉड एक्स व्हेन एक्स वेरीज -1 to 3। आपको फॉग एक्स और गॉफ एक्स लिखना है, क्विक राइट डाउन फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स। हाँ जी, हो गया। कैसे सोच रहे हो? सबसे पहले तो दोनों फंक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा ना, ये मॉड को सिंप्लीफाई करके। तो तुम्हारा फंक्शन एफ एक्स क्या दिख रहा है? एक्स की वैल्यू अगर 0 से 2 है तो ये क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव है, तो -1 प्लस 2 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स।
और अगर 2 से 4 है x तो ये पॉजिटिव है तो -1 प्लस x -2 तो -3 प्लस x. This is the definition of fx and so the definition of gx can also be obtained. अगर x -1 से लेकर के 0 के बीच में लाई कर रहा है, -1 से 0 तो x पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है तो 2 प्लस x हो जाएगा. और जब x की वैल्यू 0 से लेकर के और 3 के बीच में है तो ये 2 माइनस x हो जाएगा. Now you have the two non-uniformly defined function just like the previous case. There it was one function was quadratic, here both functions are linear, both definitions are linear. I think ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एक पहले. f of fx जब किया था तो ऐसे f of gx भी हो जाएगा. कंप्लीट करके फटाफट आंसर बता दो f gx. आ गया? किसका किसका आ गया f gx? तो भाई अगर एफ जी एक्स मुझे लिखना है तो एफ जी एक्स हो जाएगा तुम्हारा, यहां से अगर जाओ तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लुक्स लाइक 1 माइनस जी एक्स, मतलब 1 माइनस 2 प्लस एक्स और 1 माइनस 2 माइनस एक्स, बोथ द केसेस आई एम टेकिंग. पहली कंडीशन कब होगी? when gx lies 0 to 2, मतलब 2 plus x lies 0 to 2, ओपन, क्लोज भी कर सकते हो, कंटिन्यूस फंक्शन है. एंड gx 2 plus x कब है? -1 to 0. ये वाली कंडीशन भी होगी ना जब gx को आप 2 plus x ले रहे हैं. ऐसे gx को 2 minus x कब लेते हैं? जब 0 से 3 हो और 2 माइनस एक्स की वैल्यू 0 से 2 हो. ये पहला केस कंप्लीट हुआ हमारा, ये वाला केस कंप्लीट हो गया ये वाला. अब -3 प्लस एक्स, -3 प्लस 2 प्लस एक्स एंड -3 प्लस 2 माइनस एक्स. ये कब कब होगा भाई? तो 2 प्लस एक्स की वैल्यू 2 से 4 है और ये वाला है 2 प्लस एक्स की वैल्यू 2 माइनस एक्स की वैल्यू 2 से 4 है. और ये कंडीशन तो आप जानते ही हो कि 0 से 2 एक्स है, x की वैल्यू जी एक्स 2 प्लस एक्स का -1 से 0 है, -1 से x की वैल्यू 0 के बीच में है और एक 0 से x की वैल्यू 3 के बीच में. अब इसको भाई सिंप्लीफाई कर लो, ये और ये चारों केसेस को सिंप्लीफाई करो तो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस 2 माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स. कब होगा जी? x की वैल्यू -2 से 0 और ये -1 से 0 तो -1 लेस देन x लेस देन 0. यहां देखो 1 माइनस 2 x माइनस 1 हो गया. ये कब होगा जी? जब यहां पर देखो 2 सब्ट्रैक्ट करो तो -2 से 0 माइनस x है तो x भी -2 से 0, x 0 से 2 हो जाएगा, 0 से 2. बोलो है या ना? -2 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 से 2, 0 ओपन है, ध्यान रखना, ध्यान देना.
और ये 0 से 3 भी है ना, यहां से आया x की वैल्यू 0 से 2 और ये 0 से 3, फाइनल 0 से 2 ही आएगा। इज दैट क्लियर? ये वाला आ गया क्या, -3 + 2 -1 + x, x -1 ये भी आया। कंडीशन बोलो, कंडीशन फटाफट। कंप्लीट करो भाई, कंप्लीट फटाफट कंप्लीट करो। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू 0 से 2 है, 0 से 2 क्लोज्ड, और ये क्या बोल रहा है, -4 से 0, नो सोल्यूशन। सर वो -1 से 0। अच्छा, -1 से 0 है, यस। और ये 0 से 2, तो भी नो ही सोल्यूशन हुआ। यस सर। लास्ट -(x + 1) आया फिर से, कब आएगा, 0 < (-x <= 2, -2 से 0, और ये आ रहा है क्या, 0 से 3, x = 0 आया सिर्फ, x = 0 पर वैल्यू -1 आ जाएगी, ऐसे बोलो, 0 पर वैल्यू एग्जैक्टली -1 आ जाएगी। अच्छा, 0 यहाँ मिसिंग भी था इसलिए आना भी था, 0 पर -1 आ रहा है, और यहाँ पर भी 0 करो तो -1 ही आता ना, तो आप जरूरी नहीं कि इसको अलग से लिखो, यहाँ पर इक्वालिटी डाल सकते हो यहाँ पर, और यहाँ भी इक्वालिटी डाल सकते हो। फाइनल तुम्हारा आंसर आया क्या, कि -1 से 0 पर क्या है बताओ, -1 क्लोज से 0 क्लोज में क्या है, -1 -x, और 0 ओपन से लेके 2 में क्या है, 2 ओपन में क्या है, x -1। दिस इज द डेफिनेशन। तो fog x आ गया। तो आप इस तरह से कंपोजिशंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, एक बार पेशेंस से समझने वाली बात होती है, उसके बाद सब फटाफट फटाफट होने लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, कर लेंगे, आगे चलें। यस। डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो थोड़ा सा इन्वर्टिव, या ऐसा करते हैं पहले तो, should I start invertibility because we cannot complete invertibility today, so should I start or let's do last question? बोलो क्या इरादा है, क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं, कल ही स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन कर लो, चलो अच्छा है। ये फंक्शन का कंपोजिशन g(f(x) निकालो और उसका ग्राफ करो, फाइंड g(f(x) एंड ग्राफ इट। g(f(x), g(f(x) का मतलब f(x - 1) का पावर 1/3 जब f(x) की वैल्यू <<0 है, और ये हो गया तुम्हारा f(x + 1) की पावर ½ जब f(x) की वैल्यू > 0। अब g(f(x) f(x) के फॉर्म में जैसे ही आपने लिखा, अब f(x) की दोनों डेफिनेशन को यूज करो, यहां पर f(x) की 2 डेफिनेशन होगी, और यहां पर भी f(x) की 2 डेफिनेशन होगी। क्या क्या, एक बार f(x) 1 + x³ है, तो f(x) की जगह 1 + x³ प्लेस करो, कंडीशन भी डालो, f(x) की जगह 1 + x³,
1+x³ की वैल्यू 0 से लेस है और x की वैल्यू लेस देन 0 है, ये कंडीशन भी डालेंगे ना, दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना। फिर मतलब फंक्शन की डेफिनेशन और f(x) लाइज इन डोमेन ऑफ g, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पर क्या आएगा भाई, ये वाले केस में जब f(x) की वैल्यू क्या है x² - 1, तो x² -1 की पावर 1/3 कब होगा ये, f(x) हमने क्या लिया x² - 1, x² - 1 लेस देन 0 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन। अब आ जाओ दूसरी डेफिनेशन में, ये वाला g(f(x) इज f(x) + 1, ये डेफिनेशन आ जाता है। ये f(x) की डेफिनेशन फिर से दो केस होंगे, एक बार f(x) की वैल्यू x³ + 1 ले लो, x³ + 1 - 1 की पावर 1/3। ये दूसरा केस जो था g(f(x) x² + 1, x² - 1 की पावर हाफ था, हाफ, ये हाफ है बेटा, इसका ध्यान रखना। और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा क्या, g(f(x) 1/3 है कहाँ पर, जहाँ पे भी आपने हाफ लिया, एक मिनट देखने दो। अच्छा अभी तो हम लोग फर्स्ट नीचे केस ही वाले कर में रहे हाफ, थे। हाँ फर्स्ट केस ही कर रहे थे ना, मैं क्या कर, हाँ यहाँ तो पर नीचे हाफ, नीचे वाले में हाफ भी और वो +1 होएगा। ये हाफ हो गया और दूसरे वाले में क्या जाएगा, ये x³ + 1 +1 होएगा सर, यहाँ पे + 1 -1 की पावर हाफ, और दूसरा x² - 1 + 1 की पावर हाफ। एग्जैक्टली कंडीशंस क्या है, जब f(x) मतलब x³ + 1 पॉजिटिव है और 0 एंड x लेस देन 0, और दूसरे में x ग्रेटर देन 0 और x³ + 1 की बजाय x² - 1 f(x) है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो ठीक है, बोलो भाई।